सो आई होप आपको वीडियो ऑडियो शो हो रही है। आप आ जाते हैं आज की क्लास पर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। आई होप स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को। ओके। सो जो लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं या जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे रिकॉर्डिंग से यूट्यूब से, जिसका लिंक मैं हमेशा ही ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। सो द पीपल ज्वाइंड न्यू हेयर और not completed yet can complete up to date 34 from the YouTube, from the recording, and join live. Okay, I will share the link in the group. Moving on today's session. आज हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन में जेसन के बारे में। तो जिन लोगों ने पहले कुछ प्रोग्रामिंग की हुई है, जो लोग जावा स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं, वो लोग जेसन को समझते हैं जेसन क्या होता है। ओके। और जिन लोगों के लिए नया है, मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की और आपको पूरी तरह समझाने की कि जेसन क्या है और इसे क्या काम में लिया जाता है। ओके। So the person who already know some programming language and know JavaScript, they already know what is JSON. And if you are new, then I will try to explain my best what is JSON, how can we use it, and what is its main uses. Okay. So it is a text that written in a JavaScript. JavaScript is a programming language, and JSON is a text format file. Okay, so it's also a file, and you can also call it a string. Okay, so it is a text written string inside JavaScript, and it used for storing the data and exchanging the data between some websites and applications. Okay, so this is most common format for exchanging the data. When you learn about APIs and create some APIs in future, and also in our Python classes in future sessions, so JSON is a most important data. It is a simple readable format data that contains some key value pair like dictionary in Python. So that is called JSON inside JavaScript, and it is most common data to exchange between some website and application to communicate between these two. Okay. सो जेसन क्या है एक्चुअली? जेसन जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ एक डेटा है, जो जिसको आप स्ट्रिंग बोल सकते हो या जेसन नाम से फाइल भी होती है, जिसमें डॉट जेसन, जैसे इसमें डॉट पीवाई है उसमें डॉट जेसन होता है, वो फाइल होती है। ये मेनली हम यूज करते हैं इसको डेटा एक्सचेंज करने के लिए। जैसे एक वेबसाइट से किसी और वेबसाइट में डेटा जाना है या उससे आना है, तो उसके लिए हम लोग जेसन, या फिर एप्लीकेशन जो मोबाइल एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, भेजने या रिसीव करने के लिए हम जेसन का यूज करते हैं। तो जेसन जो है पाइथन में हम लोगों ने डिक्शनरी पढ़ा था। डिक्शनरी से रिलेट कर सकते हो। इसमें की वैल्यू पेयर होते हैं और की वैल्यू के थ्रू डेटा इसमें जाता और आता है। ओके, और उसी से हम इसको एक्सेस करते हैं। सो पाइथन में जेसन पे वर्क करने के लिए इनबिल्ट पैकेज है जेसन के नाम से, जिसको हम इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। ओके। अब आते हैं पार्स जेसन, मतलब जेसन को पार्स करना। पार्स का मतलब है कन्वर्ट करना जेसन को। हम जेसन एक स्ट्रिंग होगी जिसको हम पाइथन के डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसको रीडेबल डेटा बनाएंगे हम पाइथन के डिक्शनरी में लेके, जिसे हम बाद में मैनिपुलेट या यूज कर सकते हैं। ओके।
So Python has inbuilt package called JSON and to work with JSON data, and we will parse the JSON data. Parsing that means converting data from one format to another format. So we will convert JSON data into Python dictionary, so we can use all the data as we use dictionary. Then we can manipulate and add on the data, and if required we can convert back into JSON. Okay, so first you need to import the JSON. As soon as you type import here, okay, and type JSON, it will show you JSON package or module is imported. Okay, and this is some JSON string. How can you relate JSON string? I have created a variable JSON string and assigning a value into it. So this is a string. You can see this single quote both side. I'm You can see this single quote. Inside this single quote, I have pasting some data in it. Okay, so this is a curly brace, and inside this curly brace you can notice this double quote. So inside this double quote, this is our key, and after separating by colon, this is our value. When you separate key value pair with a colon and separate with comma particular key value pair, then this is called JSON and it is inside a curly brace. Okay, so this is a JSON string because it is wrapped inside a string, inside a single quote. Okay, so this is key and this is value. Key is name, value is John. Again comma separated. This is key age and value is 25, and the key is city and value is Germany. So we all know this is short data, we can read easily, but after some long data used in API, we cannot read easily like this. Okay, and we cannot work on this data without converting in Python. So we have to convert it first inside Python dictionary. So I have written a JSON string, simple JSON string, and variable name I have taken JSON string. I am parsing. Parsing means converting the data. So it's called parsing inside the programming language. So I'm parsing this JSON string. To parse this JSON string, I have to use this package. So I have used this package JSON dot. As soon as I type dot here, you can see as soon as I type dot, there is some method and some constant data I can use. So I'm using here this loads method. What is loads doing? It will load all the data inside the string and convert into dictionary. So as soon as I type loads, and it asking me for a string. Okay, so I know my string inside this variable. So I'm typing this variable JSON string, and as soon as I type, it will return me some value. So it will return a object Python dictionary. So it will convert this data into dictionary. The result is a Python dictionary. So inside this data, this is a variable data, and this is converting this JSON string inside Python dictionary and assigning into data. And now the result is Python dictionary. So I can access particular value inside it. If I want to access age, so I can write data. And how can we access dictionary? Inside a square bracket and typing the key. So key is age, and when I run the program, you can see the result is 25. That is our age. So it is converted into dictionary from JSON. सो जेसन से हमने कन्वर्ट किया. अभी जेसन को हम कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले इंपोर्ट किया हमने जेसन को. जेसन को इंपोर्ट करने के बाद हमने एक जेसन की स्ट्रिंग लिखी. स्ट्रिंग लिखने के लिए हमने यहाँ पर सिंगल कोट का यूज किया. सो सिंगल कोट के अंदर हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं, और स्ट्रिंग में हमारे पास एक कर्ली ब्रेस दोनों तरफ ओपन और क्लोज, और इसमें है की वैल्यू पेयर. उसको हम डबल कोट में रखेंगे. तो की वैल्यू पेयर में नेम की है और जॉन में इसकी वैल्यू है. अगेन एज की है और 25 इसकी वैल्यू है, और इसको हम कोमा से सेपरेट कर रहे हैं. और पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर जो सेपरेट है वो कोलोन से सेपरेट है. सिटी इसमें की है और जर्मनी इसकी वैल्यू है. क्योंकि यहाँ पर एक छोटी की वैल्यू पेयर है और इसको हमने असाइन कर दिया जेसन स्ट्रिंग के अंदर, जो कि एक वेरिएबल है.
तो इस छोटी सी की वैल्यू पेयर को हम आसानी से पढ़ पा रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास बड़ा डेटा होगा तो ये उसको हमारे लिए पढ़ना और उस पे काम करना मुश्किल होगा, और काम करने के लिए डेटा पर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ये सिंपल जेसन स्ट्रिंग है, इस जेसन स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग में इसे पार्सिंग करना बोलते हैं, पार्स करना डेटा को। सो जेसन स्ट्रिंग को हम पार्स करेंगे यानी कि कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको इस जेसन में जो आपने लिख रखा है इस इंपोर्ट को यूज़ करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करोगे जेसन, जो कि हमने पैकेज का नेम टाइप किया या मॉड्यूल का नेम टाइप किया, उसके बाद डॉट टाइप करते हो। इसमें आपको कुछ फंक्शंस और मेथड्स कांस्टेंट देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम इस लोड्स वाले फंक्शन का यूज करेंगे। इस लोड फंक्शन से क्या होगा, जेसन में जो ये स्ट्रिंग लिखी हुई है, इस स्ट्रिंग का डेटा कन्वर्ट होके पाइथन डिक्शनरी बन जाएगा। ओके, सो इसके लिए आपको यहाँ पे लोड्स मेथड को लिखना है, और ये स्ट्रिंग या तो डायरेक्ट पास कर देंगे या फिर हमने एक वेरिएबल में ले रखा है तो उस वेरिएबल को पास करेंगे। तो हमने जैसे जेसन स्ट्रिंग इसमें पास किया, पास करने के बाद ये लोड्स जो फंक्शन है वो हमारे को एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये वैल्यू होगी पाइथन डिक्शनरी। इस वैल्यू को हमने इस डेटा वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया। इसको सेव करने के बाद, क्योंकि ये एक पाइथन डिक्शनरी है, हम डिक्शनरी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसका नाम लिखने के बाद हम उसमें से की वैल्यू पेयर से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे की का नाम लिखेंगे और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। हमें पता है इसमें एज की है, तो हम यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर एज की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और एज की लिखने के बाद में एज की वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे और हमें यहाँ पर इसका आउटपुट 25 रिसीव हो गया। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये सिंपल जेसन स्ट्रिंग से पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट करना, और डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसके वैल्यू को एक्सेस करना क्लियर होगा। अगर आपको ये क्लियर है तो AC टाइप कर दो फॉर ऑल क्लियर। So I hope this all clear to you. Writing or converting a JSON string and converting into a Python dictionary and accessing a dictionary. So I hope this all clear to you. If clear, just type AC for all clear. Okay, moving on next. Now we know how to convert JSON string into Python dictionary. Now we will reverse this conversion. So we will converting to JSON. So we will convert a Python object, Python dictionary to JSON. Okay. So to convert this, first you have to import JSON. After importing the JSON, a dictionary is here for me. So I am declaring a variable here data and assigning a value. The value is dictionary. So how I know this is a key value pair inside a curly braces and separated by colon and comma for each key value pair. So name is a key and John is a value, age is the key and 25 is the value. In this way I have written here a simple dictionary, and in this dictionary I have assigned into data variable. So converting this dictionary into JSON format. Okay, so converting to JSON, you have to write same function JSON. So
actually same package JSON. As soon as you type dot here, you have used earlier loads function. Now this time you have to use dump function. So what this dumps do, it will dump into string, JSON string. Okay, so you have to give it object. So dictionary is our object, so I'm giving it data here, and when I provide it data, it will return me a value that is a JSON string. So I am declaring a variable JSON string here and assigning those returned value inside this JSON string. And when I print this JSON string, you can see the result. This JSON string is printed. Okay, सो अब हम सीखेंगे इसका उल्टा करना. पहले हमने जेसन स्ट्रिंग से पाइथन के डिक्शनरी में कन्वर्ट किया था, अब हम पाइथन से डिक्शनरी से जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे. सो जेसन को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले पाइथन डिक्शनरी से जेसन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट करना होगा जेसन पैकेज को, जो कि एक मॉड्यूल है. तो यहाँ पर हमने इस पैकेज में सबसे पहले एक डिक्शनरी को बनाया हमने, ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन किया डेटा के नाम से, और असाइन केस में एक डिक्शनरी जो कि कर्ली ब्रेसेस का की वैल्यू पेयर सेपरेट होता है, और इसमें कोमा से हर एक की वैल्यू पेयर को सेपरेट कर सकते हो. सो नेम हमारा यहाँ पर की है और जॉन वैल्यू है. इसी तरह से मैंने एज और इसकी वैल्यू 25 ये की वैल्यू पेयर को डिफाइन किया. ये एक डिक्शनरी है और डिक्शनरी को मैंने डेटा में असाइन कर लिया. असाइन करने के बाद अब मुझे इस डेटा को जेसन में कन्वर्ट करना है. तो कन्वर्ट करने के लिए मैं जेसन नाम के पैकेज का यूज करूंगा, और पैकेज का यूज करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट टाइप करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ फंक्शन आते हैं. पहले हमने लोड्स नाम के फंक्शन को यूज किया था, अब हम डम्प्स नाम के फंक्शन को यूज करेंगे. डम्प्स नाम का फंक्शन यूज करने के बाद ये हमसे एक ऑब्जेक्ट मांगता है जिसमें हम डेटा को पास कर देंगे. इस डेटा को पास करने के बाद ये हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि जेसन स्ट्रिंग होगी. उसको मैंने जेसन स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया है. तो ये असाइन होने के बाद में मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ जेसन स्ट्रिंग को, और जैसे ही मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखता है. जो डेटा हमने इसको दिया है वो डेटा हमें यहाँ पर कन्वर्ट होके दिख रहा है. सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. यहाँ तक क्लियर है तो ऐसी टाइप कर दो, टाइप ऐसी इफ ऑल क्लियर अंटिल हेयर. Okay, moving on next thing. So now we are going to know what data type we can convert into JSON string. So currently we have converted a Python dictionary into JSON string, and what more data type we can convert into JSON string. So first you have to import JSON package. Then we are converting Python dictionary to JSON string. JSON is a JavaScript that is Java called JavaScript object notation. Okay, so in this object format
what can you convert? Python dictionary. So here is the dictionary example. Python list. So when you convert list, it will appear as a JavaScript array. Okay, it will change the format here. So dictionary will appear as a object. Python list will appear as a JavaScript array. Again, Python tuple also appear as a JavaScript array. So next, Python string will appear as a JavaScript string. So this is what you can convert data type, and what data type you will get into JSON. So Python integer, you can get JavaScript number. Python float, you can convert into JavaScript number. So these both are number, integer and float. In JavaScript, it is called number type variable. Okay, and Python in the boolean value true and false, you will get true and false in the small. Okay, notice this is T capital here and F capital. Inside JavaScript, you will get both the small values. It is denoting as a true and false. And Python none value is inside JavaScript null. Okay, it will convert into null. So after import जेसन को कन्वर्ट और कौन कौन से डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। हमने अभी पाइथन का डिक्शनरी को कन्वर्ट किया जेसन के स्ट्रिंग में, और कौन कौन से डेटा टाइप को हम जेसन के स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चेक करेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले आपको जेसन इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद जैसे हमने पाइथन का डिक्शनरी को, ये जो डिक्शनरी है इसको कन्वर्ट किया था हमने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में, जो कि जेसन ऑब्जेक्ट बोला जाता है। यहाँ पर हमने पाइथन लिस्ट को कन्वर्ट किया है और ये जावास्क्रिप्ट या जेसन में एरे फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आएगा। पाइथन में जो टपल है वो भी एरे फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आएगा। पाइथन में जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट होकर आएगा। पाइथन के इंटीजर और फ्लोट वैल्यू वो जावास्क्रिप्ट में नंबर टाइप बोला जाता है, तो नंबर में कन्वर्ट होकर आएंगे। इनका टाइप यहाँ पे अपडेट हो जाता है। उसके बाद पाइथन में जो ट्रू और फॉल्स की वैल्यू है, बुलियन वैल्यूज, यहाँ पे टी कैपिटल है। पाइथन में टी और एफ कैपिटल लिखा जाता है बुलियन वैल्यू में, ट्रू फॉल्स के अंदर, बट जावास्क्रिप्ट में ये स्मॉल में आएगा, बट इसका मीनिंग वही है। ओके, और नेक्स्ट पाइथन में जो नन है वो जावास्क्रिप्ट में नल डेटा टाइप को डिनोट करता है। सो अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ और वन बाय वन हम चेक करेंगे यहाँ पर। आफ्टर प्रिंटिंग दिस वी विल चेक वन बाय वन हियर। सो it all converted into object, and this is array, and this is a string, this two number, and this is a boolean value, and this is null. So we all know how can we convert with the dump function. Okay, ये डंप फंक्शन का यूज करके आप कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो कन्वर्टेड वैल्यू आ गई है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे ऑब्जेक्ट, एरे या स्ट्रिंग, नंबर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट, यहाँ दोनों एरे, ये स्ट्रिंग, और ये दोनों नंबर, और ये बुलियन वैल्यू, और यहाँ पे नल आ चुका है। सो इन सारे फॉर्मेट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर या जेसन के अंदर, और जेसन के अंदर ये इस तरह से आएंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। And today last topic is converting a Python object containing all the legal data types. So I am converting Python object that has all data type above I have specified, I hope, and I am converting this inside JSON. Okay, so first I am importing the JSON.
So I have defined the data here. This is a dictionary. This is a dictionary in Python, and dictionary has some key value pairs, and in this key, last key, it has a list value, and list contain again a dictionary inside it. Okay, so this is nested dictionary. This dictionary contain this key contain list, and list contain again a dictionary. So we will convert this all thing inside JavaScript. So we all know JSON.dump function will convert this. So I'm putting this data into it. When you want some indentation, so we can you can read it. So you can notice some indentation here, some spaces inside it. Okay, so this normally convert into a single string that you cannot read easily. To read easily, you can pass additional indent parameter and write here the number of spaces. So I am putting here 4, and it will convert and format this according to 4 spaces. Also you can sort the keys here. So we all know keys is name, age, married. So age should be first here. Okay, so sorting alphabetically, age should be first, then some other key like cars should be next one, and in this way children and this all should be one by one according to alphabetical order. So you can here also short keys and put the value true into it. So this is another parameter. You can check all the parameter by putting a cursor on dump. Okay, and you can see all the parameter listed here. So you can use this short key indent and with your data. सो अब हम देखेंगे यहाँ पर इंपोर्ट किया हमने जेसन को, और इसमें लगभग मैंने सारे डेटा टाइप मेंशन कर रखे हैं जो ऊपर बताया मैंने। और यहाँ पे हम जानते हैं सारे की वैल्यू पेयर्स हैं, और लास्ट वाले की वैल्यू पेयर में लास्ट वाले की के अंदर जो वैल्यू है वो एक लिस्ट है पाइथन का, और लिस्ट के अंदर 2 डिक्शनरीज हैं। ओके, सो डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट एंड अगेन 2 डिक्शनरीज हैं लास्ट वाले की में। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में डंप करके, तो यहाँ पर एक हमारे को स्ट्रिंग मिलती है देखने के लिए, जो हम इसको इजीली रीड नहीं कर पाते। इसके लिए आपको क्या करना है कि इंडेंट नाम का एक पैरामीटर पास करना है, और उसमें स्पेसेस टाइप कर देने हैं। हम इस केस में 4 स्पेस पास कर रहे हैं, तो ये डेटा जो है ये फॉर्मेट होके आ जाएगा प्रिंट होने के बाद में। नेक्स्ट यहाँ पर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, तो शॉर्ट कीज नाम का पैरामीटर है जिसमें हम ट्रू पास करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। आप सारे की वैल्यू जो पैरामीटर से ये डंप पे जो कर्सर आप रखोगे, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे कि क्या क्या की वैल्यू पेयर्स अवेलेबल हैं। ओके, अब हम इसको प्रिंट करके चेक करेंगे। सो देखो फर्स्ट वाले की वैल्यू पेयर से जो प्रिंट हुआ है वो ये हुआ है, जो मैंने डेटा को नॉर्मली प्रिंट किया था, और इसमें हम समझ नहीं पा रहे हैं कि डेटा कैसे लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो हमने प्रिंट किया वो डेटा को अरेंज करके प्रिंट किया, जिसमें हमने इंडेंट किया। तो इंडेंट करने के बाद यहाँ पे 4 स्पेसेस का इंडेंटेशन आ रहा है, जिससे हम इजीली रीड कर पा रहे हैं डेटा को। ओके, और नेक्स्ट में हमने इसको अरेंज किया, शॉर्ट किया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पर पहले एज आ रहा है, फिर कार्स आ रही है, फिर चिल्ड्रन आ रहे हैं। इस टाइप से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होके आया है डेटा। ओके, so you can see here we have printed first normally data. This is a JSON string, and we cannot read it easily. So next time in next print statement we have passed indentation. So this is giving us 4 indentation as we have passed here. Okay, and you can read it easily the data. And in the next time, in next print statement, we have provided it short value. So it is sorting in alphabetical order. So first age, then cars, then children's, and in this way it is sorted all the data. So we can get these result from this. सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होगी अब तक। अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो ऐसी टाइप कर दो। इफ ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू, जस्ट टाइप एसी इन द चैट।
ओके। सो अभी टाइम है Q&A सेशन का। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप चैट में पूछ सकते हो, और अगर आपको बाद में पूछना है तो आप ग्रुप में मैसेज सेंड कर सकते हो, वहाँ पर पूछ सकते हो कम्युनिटी के अंदर। और अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो नो क्वेश्चन टाइप कर दो। सो हम क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। ओके, तो क्लास को एंड करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कम्युनिटी में सेंड कर देना और मैं वहाँ पे आंसर कर दूँगा, और आप लोगों को इसका होमवर्क और रिकॉर्डिंग जल्दी ही मिल जाएगी। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। गुड नाइट।